Hello guys, this is Hari from English classes and today I'm going to share about past possession. Actually, this topic is very interesting and I'm going to share the lecture in this video. Definitely it will be very interesting for everyone, okay. Actually, in this video I'm just going to share about the use of had, okay, because here I'm just going to share about past possession. So in the past possession, had is used, okay. So had is used in which places in a sentences, okay, and in what type of sense had can be used, okay. So let us see, and we will see here in the four format: positive, negative, interrogative and WH word. So I will just tell you in this video in the four format, just like positive, negative, interrogative and WH word. Actually we just know that means each structure has own importance, okay. So definitely this will be very mandatory and it would be, sorry, it is very mandatory to just learn each structure. So here we are just going to study about past position and I will learn, okay, we will learn here according to a structures, and we will see that means how to use in the sentence and how to use past position in a sentence and how to use in speaking skills as well as writing skills, okay. So definitely it will be good for everyone, those who are just looking for speaking skills as well as writing. So this topic and the lecture of this class is really emphasis, okay. So take care and just see please. So guys, I have already discussed about that. Today I am going to discuss about past, okay. Now past position, okay. See past position. So first of all we will try to know that what is past position. Each and every video means in each and every video I have just discussed about past, okay. So today I'm just going to discuss directly about position, that what is the meaning of position, okay. So position shows relation and honor. Again I'm just telling you, position shows relation and honor. position क्या शो करता है? relation शो करता है, honor शो करता है, ठीक है. just like this is relation, okay, and this is honor. रिलेशन का मतलब क्या होता है? सगे संबंधी. ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक. जस्ट लाइक अगर मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं, मेरे पास गाड़ी था, ठीक है, मेरे पास गाड़ी था, तो मेरे पास गाड़ी था, तो इस गाड़ी का संबंध किसका है? मेरे से. और इस गाड़ी का हक किसका है? मुझे है. तो डेफिनेटली कि इस सेंटेंस में दोनों चीज शो कर रहा है, आपका रिलेशन भी शो कर रहा है, ऑनर भी शो कर रहा है, ठीक है. तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आवे तो मुझे इसी स्ट्रक्चर से यानी कि इस पास्ट पोजीशन से ही बनाने का प्रयास करेंगे, ओके. तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट पोजीशन फॉर द पॉजिटिव, ओके. सो सी प्लीज, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर, राइट. सो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. व्हाट इट? सब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश, के पास था, के पास था, को था एंड रखता था, okay. Now how will I understand and how will we identify the sentence that it is in the form of past position or not? Simply we have to see in a sentence, if sentence ends with के पास था, को था, रखता था in Hindi, okay, definitely I will understand and we will understand the structure and the sentence is in the form of past position. But we have to take care one more thing, that there should not be a main verb or principal verb in a sentence. Suppose there should be a verb, okay. Suppose there should be a verb, means I am just talking about principal verb or main verb in a sentence. Then we cannot say and I can't identify the sentence is in the form of past position, because in this sentence there is verb but that is used as supporting verb, okay, that is not used as main verb. So we have to take a one thing, that you see this is subject, this is a have and this is object, okay. So this is subject, that is right, where the action or the action or the persons, okay. When we are just something speaking, that is called subject, okay. So we have to take care that thing. And you know had is, you know what is this, okay. Just see, this is subject, right, this is a subject and this is had, that is a supporting verb and that is a object. So we just know that there are three things in this sentence, in this structure, that is subject, had and object, okay. तो how to identify the sentence? Just like मेरे पास गाड़ी था, मुझे गाड़ी था, मैं गाड़ी रखता था. I have spoken three sentences.
बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस आर सिमिलर। ये जो तीनों सेंटेंस का जो सेंस है ये सिमिलर है, यानी कि किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। आइदर वहां पे के पास था, को था या रखता था, अगर ये तीनों सेंटेंस, ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड सेंटेंस के एंड पॉइंट पे हो तो आपका सेंस वही है, उसका इंग्लिश मीनिंग एक ही बनेगा। जस्ट लाइक मेरे पास गाड़ी था, आई हैड अ कार। मुझे गाड़ी था, आई हैड अ कार। मैं गाड़ी रखता था, आई हैड अ कार। ठीक है, मैं तीनों सेंटेंस को एक ही फॉर्मेशन बनाया। मैंने क्या बनाया? आई हैड अ कार। बट हम इसका हिंदी में जब अगर इसको लास्ट में देखता हूं तो तीनों सेंटेंस का जो लास्ट पॉइंट है वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ एंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये वाली स्ट्रक्चर पे। अब बात करते हैं कि हम हैड का यूज कहां करें। ठीक है, तो जब दो एक्सुलरी वर्ब हुआ करती थी, जब दो सपोर्टिंग वर्ब हुआ करता था, तो उस कंडीशन पे वी विल हैव सम ऑफ द कंफ्यूजन दैट हाउ टू यूज ओके टू एक्सुलरी वर्ब, टू सपोर्टिंग वर्ब इन अ वन प्लेसेस। ओके, बट हियर देयर इज अ सिंगल। तो आई थिंक यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्सुलरी वर्ब, सिंगल सपोर्टिंग वर्ब है। तो जहां मन करे वहां पे लगाओ, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, लेकिन हम इसे नेगेटिव फॉर्मेशन जब हम चलेंगे तो वहां पे कुछ हम ध्यान रखेंगे, कुछ हम कंसंट्रेट करेंगे कि किस जगह पे क्या करना है। तो गाइस वी विल सी थ्रू द एग्जांपल्स। ओके, नाउ सी, जस्ट लाइक मैंने क्या बोला कि मेरे पास गाड़ी था। ठीक है, मेरे पास गाड़ी था, इसको कैसे बनाएंगे? मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास मतलब आई। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं माई लगाते हैं, तो माई लगाओगे तो गलत होगा। आई, आई के बाद क्या होगा? हैड होगा। ठीक है, अब देखते हैं गाड़ी था, तो गाड़ी का इंग्लिश क्या होता है? आ कार। आई हैड अ कार। नाउ सी नेक्स्ट, उसके पास समस्या था। राइट, उसके पास समस्या था। ठीक है, अब उसके का इंग्लिश क्या होगा? ही होगा। ही के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। अब भाई समस्या का, तो समस्या का क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। ही हैड प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि एक समस्या नहीं बोलेंगे, ही हैड अ प्रॉब्लम। राइट, ओके। सी, तुम्हें धन था। ठीक है, तुम्हें धन था, तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा? यू के बाद क्या लगेगा? हैड। अब धन का क्या होगा? वेल्थ होता है, तो हम ये वाली वर्ड को यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट सेंटेंस का, जैसे राधा के पास एक अच्छा बंगला, राइट, बंगला था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? राधा हैड अ गुड। ठीक है, अब बंगलो BUNGLO, राइट, इस प्रकार से हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली वी हैव सीन, मेरे पास गाड़ी था, उसके पास समस्या था, तुम्हें धन था, राधा के पास एक अच्छा बंगला था। हमने ये चार सेंटेंस को देखा। एक और सेंटेंस को मैं पुट करता हूं, जैसे सोहन, ठीक है, सोहन के पास एक काला, ठीक है, काला थैला था। राइट, काला थैला था। अब इसको बनाएंगे कैसे? सोहन हैड अ ब्लैक, ओके, सोहन हैड अ ब्लैक। अब थैला का क्या होगा? बैग। ओके, सी, तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो वर्ब, और यहाँ पे वर्ब का जो इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैंने कभी क्या बताया था कि SSTP। ठीक है, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर पे हम क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे सिंगल है। हैड आपको हर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जहां पे सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने सेंटेंसेस को बनाने के लिए सीखा। अब मैं आगे स्ट्रक्चर की बढ़ रहा हूं, जो कि आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। एंड हाउ टू मेक द नेगेटिव स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव। ओके, तो सिंपली विच इज नॉट वेरी वेल, इट इज वेरी इजी दैट नॉट इज यूज आफ्टर सपोर्टिंग वर्ब। अगर नॉट का इस्तेमाल हम सपोर्टिव वर्ब की जस्ट बात करते हैं तो नॉर्मली है कि ये सेंटेंस आपका क्या होगा? वो नेगेटिव फॉर्म में से जाता है। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं।
तो if you want to take the screenshot, then please just take it shortly, okay, so that means I may move for the next structure, that is negative. Okay, so see please guys, now we are just going to learn about negative structure of past position. Okay, already I have seen and we have seen that is positive. Okay, now it is turn to study about negative structure. It is very interesting, and here we are just going to study about negative structure. So let us see and just enjoy. Okay, see please, this is negative, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेगेटिव का मतलब होता क्या है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जिस सेंटेंस में नॉट लगा होता है, जिस सेंटेंस के हिंदी में नहीं लगा होता है, तो उसी सेंटेंस को तो नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करें, तो इसको सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर आप यूज करें। अगर ये वाली नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ये वाली स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं और आप नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं एक्चुअली। जैसे अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मेरे पास कपड़ा नहीं था, मेरे पास कपड़ा नहीं था, तो मेरे पास कपड़ा नहीं था इसको कैसे बोलेंगे, आई हैड नो क्लॉथ्स, राइट। अगर मैं बोलूं, अगर इस फॉर्म में भी बुला सकते हैं, आई डिड नॉट हैव क्लॉथ्स, राइट। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मेरा है, नेक्स्ट सेंटेंस जो मेरा, मेरे पास मोबाइल नहीं था या हम लोगों के पास मोबाइल नहीं था। ठीक है, वी डिड नॉट हैव मोबाइल, राइट। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं, यू हैड नो राइस, ओके, एट होम। आपके पास, ठीक है, आपके पास घर में चावल नहीं था, यू हैड नो राइस एट होम। ठीक है, तुम्हारे पास चावल नहीं था, कहां नहीं था, घर में। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को जो देखता हूं, नेक्स्ट सेंटेंस को जो मैं देखने वाला हूं, ठीक है, यू हैड नो गुड वॉच। ठीक है, तुम्हारे पास एक अच्छा सा वॉच नहीं था। इसी को और हम देखते हैं, ही डिड नॉट हैव, ओके, डिजीज, राइट, डिजीज, उसके पास कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं था। तो यहां पे अभी हमने क्या देखा, नेगेटिव स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट लगाते थे, डिड लगाते थे, नॉट लगाते थे, हैव लगाते थे और ऑब्जेक्ट। आने की नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपली सब्जेक्ट, डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अदरवाइज वी मे आल्सो अप्लाई दिस स्ट्रक्चर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये both the structure are similar and both the structure can be implemented in speaking skills as well as writing skills, okay। So it is your choice that what you want and how will you say and how wanna you say, okay। So this is the structure that I have told you here. It will be very interesting and it will be very factful and emphasis for you all. So just guys, please use it and just watch enjoying, okay, watch and just enjoying. Now we are just going to learn about next structure, that is interrogative, and we just know very well that interrogative structure is used to ask a question. Suppose we wanna do conversation with somebody else, okay, definitely I have to ask some of the questions. Like time this structure will just help, means which structure I'm just talking about, interrogative structure, क्योंकि interrogative structure, suppose if you use interrogative structure, then we may get answer in yes or no, just like hey, क्या तुम्हारे पास छाता था, हाँ मेरे पास छाता था, yes or no, yes। क्या तुम्हें बुखार था, yes मुझे बुखार था, या मुझे बुखार था, ठीक है। क्या तुम्हारे पास काला थैला था, नहीं मेरे पास काला थैला नहीं था। तो जब हम किसी को आंसर देते yes और no में, तो वहां पे जो क्वेश्चन को पुट किया जाता है वो इंट्रोगेटिव बेस पे किया जाता है, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे और उसमें कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, वो मैं जानने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ, ठीक है गाइस। नाउ सी दिस इज इंट्रोगेटिव, राइट, दिस इज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अदरवाइज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ये दोनों स्ट्रक्चर में
किसी भी स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको क्या बोलना है कि मेरे पास सैवलॉन नहीं था या क्या मेरे पास सैवलॉन था, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिड आई हैव सैवलॉन, राइट, डिड आई हैव सैवलॉन, क्या मेरे पास सैवलॉन था, क्या तुम्हारे पास अधिक पानी था, डिड यू हैव मच वाटर, राइट, मच वाटर, क्या हम लोगों के पास दूध था, had we मिल्क, ठीक है। क्या तुम्हारे पास एक अच्छा सा मोबाइल था, had you good phone, right here, had you good mobile, okay। now we see next, that is क्या आपके पास या क्या उन लोगों के पास गार्डन था, क्या उन लोगों के पास बगीचा था, इसको कैसे बनाएंगे, did you have a good garden, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड हाउ टू स्ट्रक्चर, ओके, interrogative structure. So simply we have to do something, just like we have to take action, just like did, we have to use it, okay, beginning of a sentence and subject, then have, then object, and finally we have to put question mark, okay, that is interrogative sign, okay। So we have to move for the next structure, that is WH word, and WH word will be final structure of the past position, okay guys, so take care। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे WH वर्ड को सीखने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि WH वर्ड इसको क्या कहते हैं या इसको कैसे जानते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए से हम क्वेश्चन को पूछा करते हैं और क्वेश्चन पूछने में मुझे सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस सॉरी जिस वर्ड में WH वर्ड लगा हो या उससे स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो उसी को WH वर्ड के फैमिली में लाते हैं। जैसे क्या है ना, व्हाट, ठीक है, व्हाई, ठीक है, हु, राइट, हुज, विच, ओके, होम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो WH 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 WH, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे या सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले हम क्या यूज करेंगे, WH वर्ड यूज करेंगे गाइस। उसके बाद हम सपोर्टिंग वर्ब आने की डिड लगाएंगे, देन क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट लगाऊंगा, देन क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव साइन देंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि दूसरा रूप है। जैसे पहले क्या लगा दिए WH वर्ड, फिर क्या लगा दिए हैड, फिर क्या लगाए सब्जेक्ट, फिर क्या लगाया ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जस्ट लाइक अगर मुझे पूछना है तुम्हारे पास क्या था, ठीक है, तुम्हारे पास क्या था, तो तुम्हारे पास क्या था इसको अगर जानने के लिए कैसे बनाएंगे, देखिए तुम्हारे पास क्या था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, व्हाट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट के बाद क्या लगाना है, डिड लगाना है, तो हम क्या लगाऊंगा भाई, डिड लगाऊंगा। अब तुम्हारे के इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो व्हाट डिड यू, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हैव है, तो हम यहाँ लगाऊंगा हैव। व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था। अब हम बात करते हैं कि राम के पास कितना किलो चावल था, ठीक है। तो देखिए राम के पास कितना किलो चावल था, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए राम के पास, ठीक है, कितना किलो चावल था, या सिंपली बोलते राम के पास कितना चावल था, राम के पास कितना चावल था। अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले देखिए कितना तो क्या होता है, हाउ, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच राइस डिड राम हैव। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे हाउ मच क्यों लगा। अब देखिए जो राइस है, ये राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते। जब हम इसको गिन नहीं सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हाउ मैनी और एक है हाउ मच, ठीक है।
तो हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल किस जगह पे होता है? ये हाउ मेनी लगता है आपका किसके लिए? ये लगता है आपका नंबर्स के लिए, ठीक है। और ये लगता है क्वांटिटी के लिए। जहां पे क्वांटिटी शो करता हो, मात्रा शो करता हो, परिमाण शो करता हो, उस जगह पे हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हाउ मच राइस डिड राम है, राम के पास कितना किलो चावल थे, कितना चावल था। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जैसे ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा कलम था, तुम्हारे पास कौन सा कलम था, तो इसको कैसे बनाएंगे? विच पेन, ठीक है, विच पेन हैड यू, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज विच पेन, ठीक है, डिड यू हैव, राइट, डिड यू हैव। तो कुछ ऐसे WH वर्ड्स होते हैं जिनके बाद आप तुरंत नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या है ना कि जैसे आपका हो गया हुज हो गया, ठीक है, और विच हो गया, ठीक, आपका हो गया हाउ मच हो गया, राइट, हाउ मेनी हो गया। तो ये सारे जो आपके WH वर्ड्स हैं, इसके बाद आपका लगता है नाउन, ठीक है। तो हमने देखिए विच के बाद क्या लगाया, नाउन लगाया, हाउ मच के बाद क्या लगाया, नाउन लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के साथ हमने ऐसे बनाया। तो गाइस मुझे आशा होगा कि यह वीडियो, यह लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस लेक्चर के जरिए, इस वीडियो के जरिए से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप अवश्य इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें and don't forget to press the bell icon so that you will get more update videos. So धन्यवाद and just अपना ध्यान रखिए। ओके।